So, you learned a little about the brain and how the neurons and the glial cells work. And you also learned about the various protective mechanisms that are used to protect the brain. You know about the dura mater, the arachnoid space, the arachnoid membrane, yes? And you also know about the pia mater, and you know how these names came about? Of course, because of the research of the Arabs and the Muslim scholars. So dura mater, the outermost covering, which is covered by the skull case, then the arachnoid membrane, then the arachnoid space where we have fluid floating, then we have the pia mater, and then eventually we have the soft tissue of the brain. Then we also have the protection of the cerebrospinal fluid. And we showed you how it circulates in the brain, and this cerebrospinal fluid keeps the pressure from inside and outside and keeps this soft tissue in the shape that you have up here in this skull case, the cranium. And of course, the blood-brain barrier, very important, because then materials cannot just easily walk into the central nervous system. They have to go through the gateway of the blood-brain barrier. And if the gateway so allows, they will get in. If not, they'll get excreted out of the system. We also talked about, and I showed you some pictures, and we went through, I walked you through the neuron cytoplasm, the intracellular space. And we talked about how the cell is organized. There is mitochondria, there is ribosomes, there is all these materials that we are going to talk about in detail. Now, the cell membrane is important because the cell membrane is critical in keeping watch over what happens in the cell. The cell membrane is important in, number one, conductance of signals of the axon, which means whatever comes in into the neuron and how it is conducted out of the neuron, or the messages that are sent by the neuron. They have been controlled or are completely under the control of the cell membrane, and whatever happens in the cell membrane, and we'll go over some of the activities that happen in the cell membrane. Very busy place, this cell membrane. Then it also controls what gets into the cell through the dendrite. You do know that the input end bringing in information is the dendrite and the output end is the axon. And I showed you those pictures, if you remember, where you had many dendrites entering and simultaneously bringing in information into the cell. The cell makes a decision, and based on whatever is happening, the ionic and other activities that are happening within this membrane. It controls also the number of molecules that can enter or leave the brain. So it is like barrier, a sieve, you may say, or a permeable barrier which can open up if it so wants to and allow molecules to pass through, and closes and does not allow molecules to pass through at a given point in time. So it controls the movement of molecules, not just the movement of molecules, but the number of molecules that can leave or enter the cell. Very interesting. So here is this another guard which is looking after the cell and protecting it. Now the cell membrane is composed of, like I told you, and I told you to imagine the club layer sandwich, which has the, डबल रोटी ऊपर, डबल रोटी नीचे, बीच में भी डबल रोटी, और कुछ चीजें एक लेयर में, कुछ लेयर दूसरे लेयर में, डबल लेयर सैंडविच चाहिए. इसी तरह ये डबल लेयर सैंडविच है मेम्ब्रेन. इसके दरमियान के लेयर्स में और दोनों लेयर्स में सेल्स हैं कुछ जो विच आर फॉस्फोलिपिड्स. उनका एक एंड, अगर ये हम बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स, लुक एट दिस. If this is the internal sandwich, then this, the whole thing is a phospholipid. इसका एक एंड फॉस्फेट है, एक एंड लिपिड है. इसी तरह इसका एक एंड फॉस्फेट है, एक एंड लिपिड है.
अब आपको कुछ इसमें नजर आ रही चीज कॉन्ग्रुएंस, वो ये है कि ये दोनों साइडें एक जैसी एक तरफ है और दोनों साइडें दूसरी बाहर की तरफ है। ये जो है दिस इज द फॉस्फेट एंड बोथ साइड्स एंड दिस इज द फैट एंड और द लिपिड एंड। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ये एक जाल बना हुआ है जिस तरह का इस तरह होगा। लुकिंग एट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यू विल सी दैट फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। अब इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सीकिंग एंड। ये फ्लूइड वाटर जो जहां पर मेम्ब्रेन का वाटर होगा फ्लूइड्स होंगे उनको सीक करता है। और ये जो एंड है ये वाटर रिपेलिंग एंड है, उसको पानी अच्छा नहीं लगता। सो वो घूम के इस साइड पे, इस तरह ये भी घूम के इस साइड पे, एंड ये दोनों लॉक्ड हैं। अब इस तरह का ये जाल बना हुआ है, बहुत लंबा जाल, ये मेम्ब्रेन बनता है। अब इसमें द फैटी टेल इज इनसाइड, दिस इज द फैटी टेल एंड फॉस्फेट हेड इज आउटसाइड। तो ये जब जाल होता है ये इतना बंद जाल है, इतना नैरो ये सीव है। सीव क्या होती है? छाननी, किचन में नजर आती है ना, अम्मी इस्तेमाल करती है, या आपने भी कभी देखा होगा इस्तेमाल करने के लिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में। तो सीव ये वो है जो आपको कुछ एलिमेंट्स को निकलने देता है, कुछ को रोक लेता है। सो ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन का एक और बैरियर है। फिर देखते हैं कि इसके अंदर और क्या हो रहा है, कंट्रोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से करते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है। इसमें लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से गुजर सकता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर सीकिंग मॉलिक्यूल है उसको जरा मुश्किल होती क्योंकि यहाँ आके फंस जाएगा वो। सो व्हाट वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अ लिपिड मॉलिक्यूल कैन पास इजीली एंड अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल विल हैव डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू। चलो एक बात तो हो गई। दूसरी बात, इसमें से मेम्ब्रेन में से कैसे बड़े मॉलिक्यूल अंडरस्टैंडेबली, अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये सीव है तो छोटा मॉलिक्यूल तो इसमें से गुजर जाएगा जगह बना के, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ फंस के खड़ा रहेगा जब तक इसकी रास्ते नहीं खुलते। और रास्ते खुलते हैं और ये खुलने को हम कहते हैं सेल परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी क्या होती है? एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी, ओपननेस ऑफ द सीव लेट्स से, ठीक है। आपने अगर परमिएबिलिटी का एग्जांपल लेना है तो देखें जो स्टोन है और दूसरी तरफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का पता ना बाथरूम में इस्तेमाल होता है, किचन में अम्मी का बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्पॉन्ज है दैट इज परमिएबल, उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है मटेरियल, चला भी जाता है, गुजर भी जाता है, क्रॉस भी कर जाता है। लेकिन स्टोन, पत्थर is not permeable. So, but there are some surfaces which become permeable at a point in time and then become impermeable. Heating के साथ कुछ substances permeable हो जाते हैं वगैरह वगैरह। So, membrane की जो permeability है, इस locked membrane की जो permeability है, ये भी change होती है। And this is a very interesting story. How does this membrane permeability changes? It changes with the state of the membrane. Now, सवाल ये होता है what is the state of the membrane? अब state of the membrane क्या है? The state of the membrane is, हर शुरू में आपको याद है मैंने कहा था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है न्यूरॉन्स की भी, राइट? आपको याद आ गया। अब ये जो न्यूरॉन है और इसका जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। अब ये कहाँ से पैदा होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस? ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऐसे पैदा होते हैं कि इसमें कुछ फिजिक्स पढ़ी है ना, है ना, स्कूल में पढ़ी है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं। अब नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स जो आपस में जब ये मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस यहाँ पैदा होते हैं इसकी मूवमेंट से और इसके फ्लक्स से। अब आप सोच लें मोलिकुलर लेवल पे सेल के इस छोटे से साइटोप्लाज्म में ये
चार्जेस की मूवमेंट हो रही है। आज किस तरह से मैं बताऊं आपको कि मूवमेंट हो रही है। इमेजिन करें कभी अंधेरे कमरे में बैठे हो, एक चिंक में से दरवाजे की रोशनी से आ रही हो, और रोशनी जब आ रही होती है उसमें बहुत सारे जर्रे मूव करते नजर आते हैं, आते हैं ना, है ना? कभी नहीं आते तो दरवाजा एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब ये है फ्लक्स, जिसमें ये these little particles are moving in a state of flux, and in the same manner there is a state of flux in this little piece membrane as well. There are negatively charged ions, there's positively charged ions. Now let's find out what happens. आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द, वो घी वाला छोटा सा डॉट पानी के ग्लास में, साइटोप्लाज्म इन द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस, वो जो इनसाइड सेल है दैट इज -70 millivolts as compared to the outside. The outside is positively charged, the inside is negatively charged. अच्छा, अब ये है सेल जबकि रेस्टिंग स्टेट में है, फ्लक्स में है, रेस्टिंग स्टेट में है, अभी उसने सेल ने एक्टिविटी नहीं की, लेकिन न्यूरो जो मॉलिक्यूल्स हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज अंदर बाहर वाले वो घूम फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव है अंदर का साइड और बाहर जो सेल के है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. इनसाइड इज -70, आउटसाइड इज प्लस व्हाटएवर. जब एक्शन पोटेंशियल फायर किया जाता है तो सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिकल चार्ज गोज अप टू +50 एंड स्टेज देयर. तो ये डिफरेंस फ्रॉम -70 टू +50 120 मिलीवोल्ट का फर्क है चार्ज में सेल की एक्टिविटी का. अब ये कैसे होता है? इसमें एक सिंपल story है of course of physics, which is there are some large negatively charged, some large positively charged, some small negatively charged and some small positively charged ions moving back and forth. अब ये कौन से ions हैं? पहला है सोडियम. बड़ा आम सोडियम किधर पाया जाता है? of course salt में भी और बहुत सारी और चीज़ों में भी. Na+. सोडियम का मॉलिक्यूल लार्ज है और ये सेल के बाहर है, पॉजिटिव है और सेल के बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने की इट्स ट्राइंग टू गेट इनटू द सेल. सो हियर इज दिस लार्ज सोडियम मॉलिक्यूल, इट्स ट्राइंग टू गेट इनटू द सेल फ्रॉम द आउटसाइड. क्यों? इनसाइड नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव लार्ज मॉलिक्यूल कहता है जी मैंने अंदर जाना है. और प्रोसेस क्या वो आपको पता है, इसको हम थोड़ी देर में हम इसको नाम देते हैं. सो द पॉजिटिवली चार्ज लार्ज मॉलिक्यूल सोडियम का मूव करने की कोशिश कर रहा है अंदर. दूसरा है पोटेशियम. पोटेशियम का जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, आपको मालूम है K+, एंड दिस K+ इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, वेरी स्मॉल. तो K+ तो दौड़ता हुआ आता है, यहाँ से गुजरता है दूसरी तरफ चला जाता है, वहां से आता है इधर को चला जाता है. तो पोटेशियम को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, फ्री टू मूव इन मॉलिक्यूल के मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के इधर, फिर उधर चला जाता है तो फिर ज्यादा हो जाता है, फिर वापस भाग के आ जाता है. तो ये बैक एंड फोर्थ में सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर गुजर रहा है. सो इट मूव्स इन ईजिली एंड मूव्स आउट ईजिली, बट इट मूव्स इन ईजिली और फिर वहां पर ये ढेर जमा हो जाता है अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन. और इसको एक खास एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल पंप है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, जो सेल के अंदर से बाहर निकालता है सोडियम को भी और पोटेशियम को भी. निकलो बाहर, क्योंकि इनसाइड नेगेटिव चाहिए सेल को. तो ये जब दोनों भर जाते हैं, अब कैसे भरते हैं ये भी आपको बताते हैं कहानी. दूसरी तरफ है क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड कहाँ पे पाया जाता है? नमक, राइट. क्लोराइड इज ए नेगेटिवली चार्ज आयन और ये स्मॉल है और मूव्स आउट एंड इन वेरी इजीली. जो सेल को नेगेटिवली चार्ज रखते हैं इनसाइड सेल, वो हैं प्रोटीन्स के नेगेटिवली चार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स जो अंदर होते हैं सेल के और अंदर ही रहते हैं. दे कैन नॉट गो आउट. दे ट्राई बिकॉज अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, तो वो बाहर से अंदर नेगेटिव रहता है
और बाहर पॉजिटिव है, ये कोशिश करेंगे बाहर निकलें, लेकिन ये बाहर निकल नहीं सकते. So they cannot pass, they stay inside, and they're large molecules, large protein, negatively charged, or various kinds of proteins. Now what happens inside? अब ये कौन सी प्रोसेसेस हैं आयोनिक मूवमेंट्स की? दो प्रोसेसेस हैं. इसको इलस्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ कि अगर आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक ग्लास पानी का लें, साफ पानी, और उसके बीच में एक कपड़ा या सीव बीच में लटका दें और एक साइड पे एक चमचा नमक का फेंक दें. ओके, नाउ दिस 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट हैज सोडियम क्लोराइड. वी ऑल नो दैट. नाउ व्हाट हैपेंस इज that one side of the glass that you have does not have anything and the other side has both negatively charged and positively charged ions. अब क्या प्रोसेस होगा? पढ़ा है ना भाई? कंसंट्रेशन इक्वलाइज करने की कोशिश होगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, तो ये एकदम रश करेंगे कि दूसरी साइड को बैलेंस करें. नेचर में हमेशा बैलेंस होता है. आपका क्या ख्याल है, आंधियां क्यों आती हैं, तूफान क्यों आते हैं? लो प्रेशर एरिया को हाई प्रेशर एरिया से इक्वलाइज करने की कोशिश होती है. ये जरा देखिएगा जब इस दफा आपका वेदर में आप बताएंगे ना CNN पे या न्यूज़ में कि जी यहाँ लो प्रेशर एरिया, यहाँ हाई प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड्स आती है इक्वलाइज करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स हैं, अब वो मीटियोरोलॉजिस्ट जाने. लेकिन एक्चुअली नेचर इज ट्राइंग टू बैलेंस इवन राइट डाउन टू द मॉलिक्यूल्स. तो आपके उस ग्लास जो पानी का है उसमें एक तरफ तो सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, दूसरी तरफ खाली है. इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज दोनों आयन्स है, इस तरफ कुछ नहीं है. सो पहली जो प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की तरफ मूव कर. So moving towards the osmotic gradient or moving towards the concentration gradient to equalize and balance the concentration, molecules of sodium and chloride will move toward this barrier and try to cross this in this glass of water. And what will happen is, अभी आपको बताया ना कि सोडियम का तो बड़ा मॉलिक्यूल है तो क्लोराइड का छोटा है. क्लोराइड का तो पास कर जाएगा सीव में से, अब रह जाएगा इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, इस तरफ नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड. अब क्या होगा, है ना, वो क्लास 4 की याद करें, फिजिक्स में ये था कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. अब क्या होगा, अब ये होगा कि क्लोराइड का और फिर दोनों कोशिश करेंगे वापस आने एक दूसरे को, तो क्लोराइड अट्रैक्ट होकर फिर क्रॉस कर जाएगा बैरियर. तो क्लोराइड जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा. तो देयर आर 2 प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. समझे ना? एक है मूवमेंट ऑफ आयंस टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, और एज वी कॉल इट द ऑस्मोसिस प्रोसेस. और दूसरा जो प्रोसेस है वो है मूवमेंट ऑफ आयंस व्हेन वन has a high concentration of positively charged and the other has a high concentration of negatively charged ions. They try and attract each other to bring them together. So here electrostatic gradient. So ions will move according to the electrostatic gradient as well. So दो processes, osmotic gradient या concentration gradient और दूसरा है electrostatic gradient. अब इन दोनों प्रोसेसेस की कंटिन्यूअसली देयर इज एन ऑनगोइंग फ्लक्स एंड दिस ऑनगोइंग फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज फाउंड इन द इंटरनल cellular membrane. So processes when osmosis tries to equalize and balance concentration, then inequality still occurs in terms of electrostatic gradient. And that is when electrostatic gradients move to bring molecules together, and this movement causes a state of flux. And you will see this in this diagram that constantly potassium is moving out and in,
and sodium is trying to get in and chloride is trying to get in as well. Sodium cannot get in, कोशिश वो करता रहता है, लेकिन जिस वक्त सेल की परमिबिलिटी चेंज होती है, इट रशेज इन और सेल को भर देता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ, तभी तो वो पॉजिटिव हो जाता है +50. ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये वो है कि जब सेल इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है तो when the permeability of the cell changes, large ions rush in, as I told you, said sodium rushes in and the inside becomes positively charged. This is a biological pump which then shoves out, धक्के दे के निकालता है सोडियम को, निकलो बाहर, because and then this pump uses a lot of energy. About 20 to 30% of the cell's energy is used to push out sodium back to the outside. Very interesting. But this is a process which nature has evolved and it works. So, इसमें जब ये पुश करता होता है सेल, तो इसमें इस टाइम पीरियड में सेल एक्टिवेट नहीं होता, और ये हम आपको बताएंगे कि इस पीरियड को हम क्या कहते हैं. सेल की एक्टिविटी के दो हम पॉसिबल नाम देते हैं. If you look at what happens when the cell is excited and sends out a charge. When the cell, the neuron sends out a charge through the axon, it can create on the other side, on the postsynaptic side, this is the presynaptic side, postsynaptic side पे ये एक दो किस्म के एक्शंस क्रिएट कर सकता है, और एक है excitatory postsynaptic potential, excitatory postsynaptic potential which is known as the EPSP. इसको सेल को अगर सोया हुआ इसको जगाएगा, एक्टिव एक्शन पोटेंशियल फायर करो, राइट. सो एक्साइटेशन का मतलब ये कि यहां पर इट कॉजेज द एक्शन फ्रॉम दिस सेल will cause this cell to activate, and this is an excitatory postsynaptic potential, EPSPs. It causes the neuron to fire, the neuron which receives the information to fire. दूसरा है inhibitory postsynaptic potential. Now this cell is firing away, working away, and this cell then sends out a message, synapses, and says stop, activity बंद करो. So that will be the inhibitory postsynaptic potential, which means it inhibits the ongoing activity of the cell. So IPSP, inhibitory postsynaptic potential, inhibits ongoing firing, stops the cell from working further, and slows down the cell to a resting state. EPSP excitatory, IPSP inhibitory, ये दोनों प्रोसेसेस हैं जो सेल की पोस्ट सिनेप्टिक एक्टिविटी, जो यहाँ से जाने मैसेजेस, उनको कंट्रोल करती. अब दो तीन कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताने हैं. एक कॉन्सेप्ट है डीपोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या है? अगर आप नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल की तरफ देखें इलेक्ट्रिकल, तो डीपोलराइजेशन मीन्स रिड्यूसिंग द नेगेटिविटी एंड द पॉजिटिविटी or bringing them closer. Depolarize, which means you decrease the negativity from -70 to +50. Action potential is a depolarized state of the cell. Action potential in which the cell becomes positive is a depolarized state of the cell in which the cell has moved from -70 to +50. Now, this depolarized state means you have decreased the negative and the positive poles and you brought them to a closer point, reducing. Now, there is another concept when you can increase the negativity, that is called hyperpolarization. Hyperpolarization is where you can increase the negativity of the inside negativity of the cell. अब -70 से अगर हम उसकी इनसाइड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल चार्ज -80 पे ले जाएं या -90 पे ले जाएं, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन.
increasing negativity, increasing the negativity of the intracellular membrane or the cell itself. इसमें the cell, when it becomes hyperpolarized, it will not fire. It remains further negative. इसको बड़ा चार्ज चाहिए to come up to the action potential. बात समझ में आती? मतलब -70 से -10 तकरीबन आपके 10 मिलीवोल्ट्स का फर्क और पड़ गया ना. तो the cell becomes in a state which we call the refractory state. The cell will not accept any action potential or any electrical charges to fire. It will stay in there till it comes back to -70. और फिर हमारे पास ये depolarizations होंगी to come back to action potential, hyperpolarization going back into -70 and below, right? So the cell moves from the depolarized state to the hyperpolarized state to the depolarized state continuously. दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है जो सेल्यूलर एक्टिविटी में आते हैं. सेल्स फैसला करते हैं कि हमें फायर करना है कि नहीं करना, और ये फैसला कैसे किया जाता है? ये इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं. एक है स्पेशल समेशन और एक है टेम्पोरल समेशन. स्पेशल मीन्स स्पेस, डिफरेंट स्पेसेस. अब स्पेशल समेशन को समझना आसान है. ये समझिए 3-4 डेंड्राइट्स हैं, 5 डेंड्राइट्स हैं. ये आपकी सेल बॉडी है, राइट? अब ये डेंड्राइट्स कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली. यहाँ से भी चार्ज आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया. ये जब सेल में आता है तो सेल इसको एड अप करता है, समेट करता है कि यहाँ से लेट से दिस इज +10, दिस इज +15, दिस इज +20. तो ये सब मिलके एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे तो सेल फायर करेगा. लेकिन वो ये भी हो सकता है कि ये माइनस हो, -5. तो -5 +10 +15 +20 ये सारे चार्जेस को ऐड अप करेगा ये सेल. कितनी जबरदस्त फिजिक्स और केमिस्ट्री हो रही है यहाँ पे. तो दिस लिटिल सेल विल ऐड इट अप. यहाँ एक्सोनल हेलॉक पे ये एडिशन होंगे एंड देन द डिसीजन टू गो हेड एंड फायर विल टेक प्लेस इफ इट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ +30. छोटे छोटे ये फायरिंग आती रहती है, ये छोटे छोटे करंट्स आ रहे हैं, लेकिन सेल कहते छोड़ो, इसका क्या करना, ये तो बहुत थोड़ा है, इस पे क्यों एफर्ट ज़ाया करना. लेकिन जब जमा होते हैं ना, डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं, देन द सेल विल फायर. इसको कहते हैं स्पेशल समेशन. सो मल्टीपल सिनेप्सेस आर एडिंग टुगेदर द EPSPs and the IPSPs, the negative charge and the positive charge that are coming. It adds it, and then which are received, and it then leads to a decision of summating it and firing into action potential. So this is one spatial summation. Temporal summation क्या है? Temporal summation again EPSPs and IPSPs अगर एक ही जगह ले लें, बाकी नहीं जवाब दे रहे, इसी जगह पे बार बार एक करंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवी, क्योंकि इसमें बहुत जगह करंट आ सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ सकता है, बारी बारी आ रहा है इस डेंड्राइट में. अब इस डेंड्राइट में ओवर टाइम विदिन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स ये चार्ज आ रहा है. सो व्हेन अ सेल रिसीव्स ऑन द डेंड्राइट repeatedly over time, continuously within short periods of time, stimulation, EPSPs and IPSPs, it will put them together, and then the summation takes place at the axonal haylock and the cell fires. This is when summation takes place over time. एक ही जगह है लेकिन different time sequences को add किया जा रहा है. That is called temporal summation. स्पेशल समेशन है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी डिफरेंट जगहों से EPSPs और IPSPs आ रहे हैं. तो समेशन ओवर टाइम टेम्पोरल समेशन, समेशन ओवर स्पेस लोकेशंस इज स्पेशल समेशन.
ये कॉन्सेप्ट दो याद रखने के, सिंपल एक्टिविटी है, एड अप होती है। आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल इज फायर्ड, एज आई टोल्ड यू, फैसला कर लिया, फायरिंग कर दी, एक्शन गोज। Once the action has gone, the cell will then go into a refractory state and then into a resting state. Ab it will not fire in a hyperpolarized state. It will wait till it comes up to the resting potential. Firing जो है ये क्या है? Firing means sending out a signal. Now this signal that the axon sends out, this signal is a very fast signal. इतना तेज सिग्नल के, इतनी तेज तो आपकी गाड़ियां आम सड़कों पे नहीं चल सकती। आप जितना तेज चलाते ना मोटरसाइकिल, उतनी तेज भी नहीं चल सकती। इतना तेज, almost quicker than most of the sports cars. It is about 224 miles an hour. 100 meters per second. Imagine 100 meters per second has been marked in the cat's brain. In the human brain, it's a little slower. It's about 60 meters. 60 meters भी कोई बहुत बुरा नहीं है। 60 meters per second अगर आपके मैसेजेस फायर होके जा रहे हैं, 60 meters per second is still very fast. सो सेल का, एक सेल का ये 60 मीटर पर सेकेंड मैसेज भेजना बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म की तरफ। सेल को जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें बिफोर वी मूव इनटू द ब्रेन। देखा तो आपने सब कुछ है, इसके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम दोबारा दे देते हैं। सेल साइटोप्लाज्म, क्लियर इंटरनल फ्लूइड विच कंटेन्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे आपको, द आरईआर्स एंड द एसईआर्स। RERs are the rough endoplasmic reticulum, जिनके अंदर राइबोसोम चिपके हुए छोटे छोटे गोल बीड्स, और वो काम आते हैं। इसलिए काम आते हैं क्योंकि वो then they help the synthesis of proteins. The SERs or the smooth endoplasmic reticulum, they are without the ribosomes, and these help in the synthesis of fats. तो दोनों सिंथेसिस में भी और पैकेजिंग में भी काम करते हैं ये SERs और RERs। दूसरा है राइबोसोम्स। These are free ribosomes which are floating around in the cell, little beads जो चारों तरफ पाए जाते हैं सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, थ्रू द एक्सॉन। ये हैं molecular machines which are directed by the RNAs to synthesize certain proteins which are needed by the cell. And they are located on the endoplasmic reticulum as well as other places in the cell. फिर है Golgi complex, the Golgi complex or the Golgi bodies. अब Golgi bodies क्या करते हैं? Golgi bodies भी manufacturing bodies हैं, लेकिन they manufacture very specialized material which is the synaptic vesicles, जो छोटे छोटे containers हैं, you know, वो जो ट्रक ला जा रहे होते हैं हाईवे के ऊपर, कंटेनर्स भर के ले जा रहे होते हैं सामान। बिल्कुल आप समझिए कि हाईवे ही है जिसमें ये सिनेप्टिक वेसिकल्स भर भर के न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं इनटू द एक्सॉन, सो दैट द एक्सॉन की यूज इट एट द सिनेप्टिक ब्यूटॉन। सेल में न्यूक्लियस है जहाँ पे, वहाँ पर DNA मौजूद है और DNA कोड देता है, वो हम बात पहले कर चुके हैं। न्यूक्लियोलस है जहाँ पर RNA है और वो ट्रांसक्राइब करता है DNA की जितनी requirements है उसको for the cell to work on. Then there is the mitochondria, and I did tell you that this is an evolutionary organism which has found a very good host, a symbiotic relationship with the cell. Cell उसके बगैर गुजारा नहीं होता, उसका cell के बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन mitochondria is a living organism on its own, और उसकी working और functioning से the cell gets energy to fire, और इसको ATPs जिसको हम कहते हैं, glucose is needed, and therefore the energy, the powerhouse, actually the powerhouse of the cell, the energy producer of the cell is mitochondria. And the mitochondria is found not just in the cell, but also it's floating around in the axonal tubes and also floating around in the synaptic ending, जहाँ जहाँ याद रखिए, जहाँ जहाँ एनर्जी की
ग्रोथ होगी, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। दीज आर ट्यूब्स एंड स्ट्रैंड्स जो कि सपोर्टिव पोजीशन में है, सेल को शेप में रखती है। और सेल की शेप जो ही चेंज होती रहती है, सेल की शेप कैसे चेंज होगी? ये सोचने की बात है ना, वो तो परमानेंट थोड़ी है, वो चेंज होगी। आप लर्निंग जितनी आप सबक सीख रहे हैं ना इस वक्त, आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, कनेक्शन स्प्राउट हो रहे हैं, सेल्स की रीबिल्डिंग हो रही है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं। सो सेल शेप एंड फॉर्म जब चेंज होता है तो ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स उस शेप और फॉर्म को मेंटेन करने के काम। अगली बात है सेल एक्सॉन। एक तो सेल बॉडी हमने कर ली, सेल एक्सॉन वी हैव टॉक्ड अबाउट, और मैंने अपनी बाजू को एक्सॉन बना के आपको कई दफ़ा बताया। एक द थिकर एंड ऑफ द सेल विच इज द आउटपुट एंड ऑफ द वन आउटपुट एंड ऑफ द सेल, जिससे इंफॉर्मेशन बाहर जानी होती है, और इसकी बड़ी एक्टिव है ये प्रोसेस। इसमें देयर इज द एक्सोनल हिलॉक, जब वो सेल से निकल रहा होता है तो बल्जिंग सा हिस्सा होता है, जिसमें से आप ये तस्वीर देखिएगा तो आपको पता चलता है एक्सोनल हिलॉक इज वेयर द सेल मर्जेस इनटू द एक्सॉन और मूव्स आउट इनटू द एक्सॉन। समेशन भी यहाँ होती है, बड़ा क्रिटिकल एरिया है। तो समेशन टेक्स प्लेस, डिसीजन टू फायरिंग for firing takes place, then there are microtubules going through the axon, and of course there are vesicles, there are mitochondria, there is a myelin covering, Schwann cells covering the, and I showed you this picture. आप देखिए गौर से सामने तस्वीर को भी कि ये Schwann cell उसको एक्सोन को कैसे कवर किए हुए हैं, और उसके आगे हर Schwann cell के बीच में आपको नोड, ये गैप मिलेगा, इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये आप तस्वीर में गौर से देखिए, नोड्स ऑफ रैनवियर वेयर द मैसेज स्किप्स अक्रॉस। ये अनमाइलिनेटेड है, अनइंसुलेटेड है, लेकिन मैसेज स्किप्स अक्रॉस और स्पीड पकड़ता जाता है साथ साथ, एवरी टाइम इट स्किप्स अक्रॉस, सो इट डजंट लूज द कैपेसिटी। फिर सिनेप्टिक ब्यूटॉन्स हैं, बल्ब्स हैं, जहाँ से एक्सॉन मैसेजेस आगे भेजेगा। इस छोटे छोटे बल्बस फॉर्म्स हैं, और ये भी बड़े इनकी क्रिटिकल फंक्शनिंग है। जब हम न्यूरोट्रांसमिशन की बात करेंगे तो हम इस पे आएंगे। डेंड्राइट्स सिंपली आर द रिसीविंग एंड्स, मल्टीपल ब्रांचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इंफॉर्मेशन ना लें तो सेल जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, सो दे हैव टू ब्रिंग इन द इंफॉर्मेशन इनटू द सेल। अब ये सारी बातें हमने कर ली। सिंपली पुट, ये समझ में आ गया कि न्यूरॉन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स biological, biochemical, neurophysiological, electrophysiological, chemical processing unit, which is taking its independently activity ongoing throughout lifetime. So this is a very important building block of the brain, and each neuron is an independent functioning unit. It manufactures its own substances, but it depends on what is provided to it, and it is protected by the cellular gateway and many other gateways, which we'll talk about later. Otherwise, neurons would continuously, other substances could cross over, they would injure this little factory, so we would not be able to work. So suffice it to say, highly complex, highly efficient, and most capable of handling various kinds of biochemical, chemical, biological, physical, physiological information. Let's come to what we now are interested in, the brain. Before we get into the brain, let me see that if you understand the terms of reference, the axis on which the brain is working on. Let me just get up a little here so that I can explain better what I mean by these axes. If we talk about these axes, first of all, there is the anterior and posterior. Anterior का मतलब the front, posterior means to the back, right?
So anterior is this, posterior is to the back. Anterior is towards the nose, posterior is towards the back, towards, if you see a dog, a cat, that is towards the tail. So घोड़े की जो posterior है towards the tail, anterior है towards the nose. So you have the anterior end and the posterior end. This is also known as the rostral and the caudal. Rostral means in front of the face, and caudal means towards the tail, caudate, the tail. So rostral, caudal means have about the same reference or the same axis as anterior, posterior. एक तो प्लेन ये हो गया, और एक एक्सिस जिस पे ब्रेन को हम समझते हैं और देखते हैं वो ये है. दूसरा है डोर्सल वेंट्रल. डोर्सल, अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने की, एंटीरियर पोस्टीरियर तो समझ आ गया, फ्रंट और बैक, तो ये डोर्सल किधर से आया? डोर्सल जो है वो है, जब आपको एग्जांपल देने के लिए, शार्क को फिल्मों में नहीं देखा, वो फिन उसके ऊपर वाली फ्लोट कर रही होती है, उसको देख के डराते है ना, शार्क की फिन, दैट इज नोन एज द डोर्सल फिन ऑफ द शार्क. टुवर्ड्स द बैक साइड, टुवर्ड्स जो आपकी पूरी बैक चल रही है, दैट इज द डोर्सल साइड. और जो स्टमक की साइड है, ये चेस्ट की साइड है, दैट इज द वेंट्रल साइड. सो डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट. तो ये दो प्लेन्स तो ये हो गए. वेंट्रल इज टुवर्ड्स द स्टमक साइड एंड डोर्सल इज टुवर्ड्स द वर्टिब्रल साइड. बैक साइड नहीं है, बैक एज इन बैक, सर के बैक होता है, लेकिन दिस इज द बैक ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. टेल एंड नहीं है, ये फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं है. तीसरा आपका प्लेन है वेयर वी से मीडियल एंड लैटरल. मीडियल इज टुवर्ड्स द सेंटर and lateral is when you move to the two sides of the body, outsides, middle. So medial, middle, lateral on the outside. तो आपके पास ये तीन एक्सिस हैं. पहला एक्सिस एंटीरियर, पोस्टीरियर. एंटीरियर टुवर्ड्स द नोज, पोस्टीरियर टुवर्ड्स द टेल, उसको हम rostral caudal भी कहते हैं. Dorsal towards the back, which is, compare yourself to the fin of the dorsal fin, and of course the horses and the cats. अगर वो हम अगर बैक पे अपने चारों एक्सट्रीमिटीज पे खड़े हों तो हमारी जो ये साइड होगी वो डोर्सल साइड होगी. और वेंट्रल towards the chest and the stomach region. Medial again to the midline and lateral towards the sides. ये तो एक फ्रेम ऑफ एक्सिस हुआ. इसके अलावा और भी एक्सिस हैं जिन पे हम, या और भी टर्म्स हैं जिनसे हम रेफरेंस देते हैं ब्रेन की, और इनमें से एक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग फाइबर्स आर दोज दैट मूव फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू और द ब्रेन टू द हायर. सो असेंडिंग मीन्स coming from the lower ends going up. Ascending means coming from here going up, coming from here going up, or coming from the lower brain areas going up. जहाँ से भी अगर ऊपर को जा रहे हैं, that will be ascending. Descending fibers, obviously as the name implies, are coming down, चाहे ब्रेन से लोअर ब्रेन एरियाज की तरफ जा रहे हों, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हो, ब्रेन से एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहे हो, ब्रेन से नीचे कहीं भी जा रहे हो, these are descending fibers. So descending fibers are those that move from the higher to the lower, from the center to the extremities, that will be the descending eyes. इसी तरह से superior और inferior की एक टर्म आती है. Superior means the top areas
and inferior means the lower areas. So the areas which are lying on top of this cerebral cortex is superior to the subcortical regions, which means it lies on top of the lower structures. इसी तरह से आगे हम जाके बताएंगे एक एरिया है which is known as colliculi ब्रेन के अंदर, और inferior colliculi lower areas है, superior colliculi जो उनके ऊपर वाले areas है. तो superior वही होंगे जो are lying on the top and inferior वो होंगे which are lying on the lower side of those areas. इसी तरह से ये superior inferior हम structures के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम fiber systems के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम projections के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम areas के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह से आपकी एक और टर्म है proximal and distal. Proximal means those that are closer to each other. Obviously, there are areas in brain which are closer to each other. We'll say proximal location है, and there are areas which are distal or farther away. So proximal and distal. Proximal means close, distal means farther. तो ये एक टर्म और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस्तेमाल होती है. इसी तरह से दो और टर्म्स हैं. आई एम डिफाइनिंग दिस टर्म्स because these terms are going to come back again and again for us and we are not going to be elaborating on them. ये आपको याद रखनी होगी. ये जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, इनको याद करो और घोट के पी जाओ, क्योंकि ये आपके काम आएंगी, बार बार यही रिपीट होंगी. अगली टर्म्स जो दो हैं वो है इप्सीलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल. इप्सीलैटरल वो है which is coming from the same, ipsi means from the same side. If I'm touching my left eye with my left hand, this is ipsilateral, right? Contralateral would be if I touch my right eye with my left hand. क्यों? From the other side to the other side. इसी तरह से ये तो सिर्फ सिंपल आपको दिखाने के लिए है ना, लेकिन इसी तरह से ब्रेन फाइबर्स क्रॉस करते हैं and they are contralateral. आपको बेसिक फिजियोलॉजी मालूम है ना कि सारे आपके लेफ्ट साइड के राइट साइड के जो फाइबर्स हैं दे गो इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और सारे जो लेफ्ट साइड के हैं दे गो इनटू द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट? सो contralateral, if I move my left hand, it is messages from the right hemisphere which are, so contralateral है. Ipsilateral is only on the same side. तो ये दो टर्म्स आपने और सीख ली. Ipsilateral from same side, contralateral opposite sides और opposite hemisphere और opposite location. फिर दो और टर्म्स हैं efferent and afferent. ये तो याद होंगी. Efferent वो those nerves and those systems which take information into the brain or towards the brain. इसमें मोटर सिस्टम्स भी आते हैं और भी बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, लेकिन हम मोटर सिस्टम्स को या मोटर इंफॉर्मेशन को जो यहाँ से मैं मूव करती हूँ, दैट इज which is efferent is taking information out of the brain. So information जो यहाँ से आ रही है जिससे मैं हाथ मूव कर सकती हूँ, that is the efferent system. The afferent system is where information is going into the brain. ये शीशा ठंडा है, ये इंफॉर्मेशन इस वक्त मुझे उंगलियों से जो गई है, it is an efferent system which has gone into the kinesthetic cortex. So afferent bringing into the brain, efferent going out of the brain, और motor systems control करते हैं. Then there are other terms that we have to talk about, little more complex, और ये हमारी होती है जिसको हम कहते हैं planes of reference. 3 planes of reference हैं. पहले तो नाम सुन लें, horizontal plane, sagittal plane and frontal plane. अगर इसको हम समझें, अगर
कभी प्याज या आलू को आपने काटना हो, घर में नहीं काटा तो आज जाके काट के देखो। 2-3 तरह से आप उसको काट सकते हो, राइट। पहले तो ये आलू रखा हुआ है ना, जिस शेप में भी है, सीधा रखा, उसको जब यहाँ से ऐसे काटेंगे ना, तो दैट इज द फ्रंट टू द बैक, चॉप 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 चॉप, इधर से भी चॉप 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 चॉप, इधर से जब काटेंगे, दैट इज द फ्रंटल प्लेन। हम ब्रेन के स्लाइसेस इस तरह से भी काट सकते हैं, फ्रंटल। दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है कि हम इस तरह से काटें, राइट, यूं स्लाइसेस काटें लंबे लंबे, पूरे के पूरे सेक्शन लंबे लंबे, ये हॉरिजॉन्टल है। ऊपर से शुरू करें नीचे तक चले जाए, या नीचे से शुरू करें ऊपर तक चले जाए। उसके बाद है सैजिटल। सैजिटल है कि मैं आलू के बीच में से 2 हिस्से करूं, बहुत बड़ा आलू है, यहाँ से हिस्सा आधा किया, पूरा नीचे तक आधा करने के बाद आधे हिस्से को अलहदा किया, उसको चॉप 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 इधर से काटा, ताकि मुझे सारे इस तरह के हिस्से नजर आते जाए, प्याज को जैसे काटते, और दूसरी तरफ चॉप 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 फिर इस तरह। तो दिस इज द सैजिटल। अगर दरमियान में से मैं काट के इधर को जाऊंगी तो दैट विल बिकम मिड सैजिटल। ये देखने वाली तस्वीर है, तो गौर से देखें इस तस्वीर को। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन, सैजिटल प्लेन और फ्रंटल आपको तीनों बड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं, और गौर से इसको तो देखिएगा, मुश्किल नहीं है समझना, बट दिस इज द 3 डायमेंशंस ऑन विच द ब्रेन इज देन अंडरस्टूड। तो अभी तक हमने बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रोग्रेस हुई है। आपने न्यूरॉन के अंदर भी चले गए और न्यूरॉन को भी देख लिया, आपने न्यूरॉन की फायरिंग भी देख ली, EPSPs भी देख ली है, IPSPs भी देख ली, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स द नर्वस सिस्टम इज, because even the basic building block is complex. But it is very interesting because now we are going into understanding the anatomical structures. जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं समझते ना, तब तक anatomical structures नहीं समझ सकते। अब इसमें आप समझेंगे how are behaviors related to. पढ़ना ज़रूर, तस्वीरें ज़रूर देखो, तस्वीर को उससे रिलेट करो। मैं आपको बताऊं, टेस्ट आ रहे हैं और मुश्किल होते जाएंगे। If you don't study regularly, you will not be able to do this. इसी तरह से छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में करके देखो। वो नमक का ग्लास, आधे ग्लास में शीशे में नमक डालो, आधे में रहने दो सीव डाल के, फिर देखो किस तरह से आपकी सर्कुलेशन होती है उसकी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ऑल द बेस्ट, do your reading. Things are going to get more interesting, more difficult in the next class.